See, first question देखो, how many elements has power set of A if A is equal to 5? So if A is equal to 5, उसमें से कोई भी elements नहीं है, so subsets power set में एक ही set है, power set of A मतलब set of all subsets. So 5 itself is a subset. So how many elements are there? There are only 1 elements. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको इंटरवल नोटेशन यूज करके लिखना -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6. So set of all real numbers between -4 and 6. 6 is included, so closed bracket. -4 is not included, so open bracket. So this is a half open half closed interval, ऐसे लिख सकते हैं. -12 less than x less than -10. 10. So set of all real numbers between -12 and -10. -12 and -10 के बीच में. -10. -10 is not included, -12 is not -12. included. So it is open interval. Set of all real numbers between 0 and 7. 0 is, and 7 so 0 is included, included 7 and is 7 not, is not included. open interval. Set of all real numbers between 3 and 4. So 3 is also included, 4 is also And included. 4 is also included. So Closed. closed. No. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे उन्होंने इंटरवल नोटेशन दिया -3 0, that means -3 is not included, 0 is not included. Set of all real numbers between -3 and 0. 0 6 12 closed and interval. 12. So that means 6 set of all real numbers between 6 and 12 6 is included, 12 is also included because closed included. interval. 6 comma 12. This is 12. also set of all real numbers between 6 and 12, 12. but 12 is included. 12 6 is included. 6 is not included. set of -23 5. That means set of all real numbers between -23 and 5. And 5. 5 is not included, but -23 is -23 included. is So included. -23 less than or equal to x less than 5. Okay. Now, question number 8. The universal set would you propose for each of the following set? Universal set मतलब उससे सबसे बड़ा set. जैसे set of right triangles. Set of right triangles तो Set of all triangles. set of all triangles. Then set of isosceles triangle. Set of isosceles triangle also we can say set of all triangles. उसमें से कुछ नहीं, set of all triangles. तो टीवी वाला जो चला रहे थोड़ा सा म्यूट कर दो. Then A, B, C, 3 sets given. A, B, C, 3 sets are given.
Which of the following may be considered as universal set for all the three sets? तीनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसिडर? फर्स्ट वन देखो 1 3 5 8 2 4 6 है, बट उसमें से 8 वाला नहीं है, सो ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं. सेकंड वन बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें से कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 5 है. थर्ड वन देखो, थर्ड वन में 1 3 5 आ रही है, 2 4 are 8 0 2 4. So yeah, third one you can consider, but this one also, last one also you cannot consider because 0 उसमें से नहीं है, C में 0 है. नहीं है. Understood? Yes, sir. Yes. Yeah. अभी तो नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स मतलब हम ये सेट को स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स वगैरह यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम. फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ. Suppose my set A is equal to set 1 2 3 4 5. My set B is equal to 3 5 7 9. My universal set, I took my universal set as 1 2 3 4 etc 10. इसको मैं थोड़ा पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं. पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम. सो यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली हम, फॉर यूनिवर्सल सेट को हम नॉर्मली रेक्टेंगल यूज करते हैं, यूनिवर्सल सेट. ठीक है. एंड फॉर नॉर्मल सेट्स वी यूज सर्कल्स यूज करते. सो इधर अभी जो दिया वाला सिचुएशन है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. सो सेंटर में आएगा, कोई इश्यू नहीं हो, सेंटर में आएगा. सो हियर अभी आप ऐसे लिख सकते हो, आपका ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट्स है 3 5. सो दिस इज योर, दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी. सो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 3 and 5, सो कॉमन एरिया में आएगा. बाकी ए में जो एलिमेंट्स था 1 2 and 4, बी में एलिमेंट्स था 3 5 7 9, सो 7 9 उसके 9. बाहर आएगा. देन बाकी जो एलिमेंट्स, जो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, बड़ा रेक्टेंगल, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट. सो बाकी 3 5 6 8 10 9 ऑलरेडी है, सो इतना तो बाहर आएगा.
Understood? This kind of representation we can represent like this. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल यूज करेंगे, स्मॉल सेट को हम सर्कल्स यूज करेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन. ऐसे सेट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज नोन एज वेन डायग्राम. अभी देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. Different types of operations are on set. Union, that I will tell you. Different types of operations in sets. हमने एक नया जैसे नंबर सिस्टम पढ़ाई करेंगे तो उस नंबर सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है. वैसे सेट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है. वन ऑपरेशन इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट्स. सपोज योर सेट इज A is equal to 2 एग्जाम्पल से बताता हूँ, 2 4 6. B is another set which is say some 1 3 5 6. Then union of A and B, it is denoted like this. A symbol is U, A union B. So A union B मतलब आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्स A एंड B में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिख देना. 1 2 3 4 5 6. A union B मतलब it is the set of all elements such that X belongs to A, either A में होना चाहिए और X belongs to B, नहीं तो B में होना चाहिए. That means जितना भी एलिमेंट्स है A और B में पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिख देना. सेकेंड ऑपरेशन है intersection of sets. In the above case, it is not like this. A symbol is the union का symbol जो U उल्टा कर दिया, A intersection B. उसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे, कॉमन पॉइंट्स. तो जितना पॉइंट्स कॉमन है वो लिख देना. So you can see that only 6 is common. Understood? So in general you can say that A intersection B, intersection का symbol जो यूनियन का सिंबल एकदम उल्टा कर दिया. इंटरसेक्शन मतलब set of all elements such that X belongs to A में आना चाहिए and X belongs to B में भी आना चाहिए, दोनों में आना चाहिए उस एलिमेंट्स का कलेक्शन. दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. यूनियन है तो कोई एक में आएंगे तो चलेगा. अनदर ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ
sets, difference of sets. जैसे it is denoted like this, a minus b. a minus b मतलब उसका definition ऐसे है, a minus b. सभी elements लिखना है, set of all elements such that x is a, x a में है, a में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखना है, बट x नॉट इन b, बट x b में नहीं होना चाहिए. अभी a में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखना, प्रोवाइडेड दैट एलिमेंट शुड नॉट बी इन b. सो a में 2 है, सो 2 लिख दिया. a में 4 है, 4 लिख दिया. a में 6 है, बट वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि 6 b में भी है. सो a माइनस b मतलब सेट 2, 4. Understood? So these are the 3 types of operations: union, intersection, difference. Union, intersection, difference. Understood? आया समझ में? कुछ प्रॉब्लम्स, विल डू सम प्रॉब्लम्स. उसका प्रॉपर्टीज वाला है, हम बाद में डिस्कस करेंगे. विल सी सम प्रॉब्लम्स. देखो, फाइंड द यूनियन. ओके, 1 सेकेंड, आपको नहीं दिख रहा होगा. One second. Find the union of each of the following pair of set. So X union Y. X union Y मतलब set of all elements which are common to, means which are in A, X and Y. So 1, 2, 3, 5. A union B. देखो A E I O U A में है, A B C. So A B C E I O U. Third question देखो, A is set of all elements such that X is a natural number and multiple of 3. Hello? Yeah? Sorry sir, वो गलती से हो गया. Okay.
X is a natural number and multiple of 3. So X is a natural number and multiple of 3. मतलब it is 3, 6, 9, 12, 15, etc. That is your A, infinite number of sets. B. B is a natural number less than 6. So B is a natural number less than 6. मतलब 1, 2, 3, 4, 5. सो हमें चाहिए ए यूनियन बी. सो ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, etc. Understood? Question number 4. Set of all elements such that X is a natural number and it is between, so 1 and 6. So 1 is not included. So 2, 3, 4, 5, 6. Set of all elements such that X is a natural number A, and between 1 and 6. 1 is not included, but 6 is included. B. B is the set of all numbers, natural numbers, and it is between 6 and 10. So 6 and 10. 6 and 10 is not included. So 7, 8, 9. So iska union, A union B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Question number 5. A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 5. So A union B. A union B. So क्या क्या आ सकते हैं? Set 1, 2, 3. 5 नहीं आएगा. आप ऐसे लिखेंगे तो आपने सपोज मान लीजिए ऐसे लिखा 1, 2, 3, 5 ऐसे लिखा है तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि B is 5. B मतलब नल सेट. B मतलब नल सेट. नल सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है. अंडरस्टूड? सपोज इफ उन्होंने दिया, इफ ऐसे दिया, मान लीजिए इफ B इज इक्वल टू, उन्होंने ऐसा दिया था, मान लीजिए सेट 5 ऐसे है तो हम बोल सकते थे A union B is equal to set 1, 2, 3 and 5. In this case 5 is a member of B, but इधर जो दिया B is equal to 5 मतलब it is null set. Understood? So A union B is equal to, A में elements है 1, 2, 3, B में elements है 5. So the union is set 1, 2, 3. Is it clear? Next question देखो, question number 2. A is equal to set AB. B is equal to set ABC. So is A subset of B? A में जितना भी elements है पूरा का पूरा elements B में है, so it is subset. So A subset of B, तो A union B क्या आएगा? देखो A union B is ABC. and that is B itself, है ना? A is a subset of B मतलब आप ऐसे आएगा, आपका B is your B. A is a subset मतलब A का पूरा एलिमेंट क्या आएगा? B के अंदर ही आएगा ना. So A union B is equal to B. नहीं तो A B C, that is nothing but B. So that is what is the third question. If A and B are two sets of B, then A union B is equal to
यूनियन मतलब B. पूरा का पूरा एलिमेंट्स लिखना है. So A is a subset of B. So when you write the elements, you have to write all the elements of A and all the elements of B. So A का पूरा elements B में already आ चुका है. So A union B itself is B. Clear? ये आज बच्चे बहुत कम आए. आपको कोई रीजन पता है क्या क्यों ऐसे आया करके? आज कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ है क्या? ऐसे कुछ है क्या आज? कुछ कोई फेस्टिवल ऐसे कुछ? देखो, A is equal to set 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8, D is equal to 7 8 9 10. So write A union B. A union B is equal to A and B का पूरा एलिमेंट्स लिख देना. 1 1, 2, 2 3 4 5 6. A union C. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. B union C. B and C. 3, 4, 5, 6, 7, 3 8. 4 5 5, 6, 6 7, 8. 7 8. B union D. B and D together. So 3 3, 4 4, 5, 5 6, 6 7, 8, 9, 10. 7 8 9. 7, 8, 9, 10. Then A union B union C. 10. So A union B union C मतलब 1 2 3 4 2, 3, 5 4, 6 7 2, 8. 3, पूरा 4, पूरा लिखना है. 5, 6, A 7, 8. union B union D. So A union B 1 2 3 4 5 6. साथ में D also 7 8 9 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9. And B union C union D. So 3 4 5 6 7 8 9 10. है ना? क्लियर? Yes, sir. बहुत सिंपल टॉपिक है ना? Yes. देखो इधर
फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे था कि जितना भी क्वेश्चन अभी हमने किया उसका इंटरसेक्शन निकालो करके, यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट वन इज यूनियन के जगह इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी, कॉमन पॉइंट 3 and 3, 4. 4, ये इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी के लिए कॉमन 5. 5, कोई कॉमन नहीं है, सो 5। बी इंटरसेक्शन बी, बी एंड सी के लिए कॉमन 5, 6. 5 5, 6. 6। बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी के लिए कॉमन 5, B and D. B is 3 4 5 6, 5. D is 5, nothing is common. ये इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, that means तीनों के लिए कॉमन, 3, 4, 5, 6. तीनों के लिए कॉमन 3, 4, 5, 6. ये Five. A is Five. 1 2 3 4, B is 3 4 5 6, C is 5 6 7 8, so we can see that there is nothing common to all the three sets, so it is 5, कोई कॉमन नहीं है तीनों के लिए। 3 4 कॉमन है A and B के लिए, right? Then A intersection B intersection D, A B D के लिए कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि A में 1 2 3 4 है, D में 7 8 9 10 है, उधर ही कॉमन नहीं है। B intersection C intersection D, B C D के लिए कॉमन, so B is 3 4 5 6, D is 7 8, so कोई कॉमन नहीं है, 5। 5. ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड आपका दोस्त लोगों को बोल देना टाइम पर क्लास में आने के लिए, ठीक है। एंड टुमारो जन्माष्टमी है, क्लास नहीं होगा, छुट्टी है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी डे आफ्टर टुमारो, ओके, टेक केयर, या बाय बाय, अटेंडेंस भेज देना।